تو دوستو یہ جو آج میں آپ کو نسخہ جات دکھاؤں گا یہ میرے بزرگوں نے مجھے عطا کیے تھے اور نہایت ہی زبردست ہیں، اور جو کوئی بھی ان قواعد پر عمل کرے گا تو 100% مرد 18 کا علاج ہوگا اور بانج عورت اولاد پیدا کرنے کے ضرور قابل ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو میں آپ کو سکرین پر چارٹ دکھا رہا ہوں اس میں سے نام بماں والدہ بانج عورت کے نکالے اور انہیں 12 پر تقسیم کرے، جو باقی بچے وہی برج تصور کیا جائے اور اس کے مطابق طریقہ علاج کا آغاز کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے جو صدقات جات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے ذرا بھی شک نہیں ہے، کیونکہ میرے بزرگ خود کئی کاموں کے عامل تھے اور زبردست نسخہ جات وہ کسی غیر انسانی مخلوق سے پوچھتے تھے اور پھر بتاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ نسخہ مجھے بھی بتایا، جیسے انہوں نے بتایا میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میرے آزمودہ بھی ہیں اور لوگوں کو کر کے دیا اور ان کو 100% درست پایا ہے۔ اگر کوئی خاتون ویسے بھی اپنے برج کے حساب سے ان صدقہ جات اور دونی والے اعمال کو کرے تو کئی اقسام کی بلاؤں آفتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میں پہلا برج کا ہے عمل، اس برج سے منسوب جو عورت بانج پن کا شکار ہوگی اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا جاتا ہے، خواب دیکھتے ہوئے لرزہ سے تمام جسم کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے علاج اور صاحب اولاد بننے کے لیے ایک رنگ بکری یا مرغی، ایک رنگ کی بکری یا مرغی لینی ہے۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو بکری استعمال کریں تو بہت بہتر ہے۔ اس کو ذبح اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک چھری لے لیں، اس کو ساری رات کالے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر مریضہ کے سرانے الٹی طرف رکھا جائے اور اس چھری سے اگلے دن اس بکری یا مرغی کو ذبح کیا جائے اور اس کا سارا گوشت مٹی کے مٹکے میں ڈال کر اس کے اوپر گندم 5 پاؤ سے لے کر 5 کلو تک ڈالی جا سکتی ہے۔ پھر قدرے مٹی چوراہے کی اور اس کپڑے کو جس میں چھری رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈال کر مریضہ کے سر سے 7 مرتبہ اتار کر اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر کے کسی ویران جگہ دفن کر کے اس کے اوپر نہائے اور میٹھی شے سے منہ میٹھا کرے اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے۔ اللہ کے حکم سے بانج پن کا خاتمہ اور اولاد ضرور ہوگی۔ تو نقش یہ جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنا لینا ہے۔ تو دوسرا جو نقش ہے وہ ہے سور۔ یہ مریضہ اپنے سر میں شدید درد محسوس کرتی ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دماغ باہر آ جائے گا۔ اس کے علاج کے لیے بالکل یک رنگ کالی یا سفید مرغی، 5 کلو گندم، 5 کلو ماش، 3 کلو نمک، قدرے چوراہے کی مٹی، شٹانک یا پاؤ، کوئی بھی دال، مرغی کا ذبح کیا ہوا گوشت اور ان سب اشیاء کو مٹی کی کنالی میں رکھ کر سفید چادر سے ڈھانپ کر آبادی سے کہیں دور دفن کر کے اس پر غسل کیا جائے اور نئے کپڑے پہنے جائیں۔ جو کپڑے اتارے جائیں گے انہیں کسی کو دے دیں، اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس نقش کو گلے میں باندھا جائے اور دھو کر اس کا پانی پیا جائے۔ نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنانا ہے۔ تو یہ جو آگے چل کر ہے یہ ہے جوزہ۔ یہ خواتین پیٹ درد، سر، آنکھوں پر وزن، پریشان حالی، خواب میں منہ پانی سے بھر جانا، کفیت ظہور میں آتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے ایک عدد کالی بکری یا مرغی، اس کو ذبح کر کے اس کا خون اور سادے پانی کی بوتل، ان دونوں کو مریضہ کے سر سے 7 مرتبہ اتار کر کہیں دفن کیا جائے۔ پھر گوشت 5 گز کالا کپڑا، 3 کلو آٹے کو گوندھ کر اس کی روٹیاں دیسی گھی میں تر کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے اور 3 کلو اپنے جسم سے 7 مرتبہ وار کر کسی بھی غریب آدمی کے دو۔ مزار پر جو چراغ تیل سے خالی یا بجھے ہوئے ہوں ان میں تیل ڈال کر ان کو روشن کیا جائے۔ پھر گل صدر، گل برگ، انار کا برگ مریضہ کے جسم پر مل کر مشرق کی طرف آگے منہ کر کے پیچھے کی طرف پھینکا جائے۔ پھر اس نقش کو گلے میں باندھا جائے اور چینی کی پلیٹ
प्लेट पर ज़ाफ़रान से लिखकर सुबह नहार मुंह पिया जाए। नक्श ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है। इसके आगे जो बुर्ज है वो सरतान। इस बुर्ज से मुतल्लिका मरीजा को सर दर्द, पट्ठों पर वजन ज्यादा गलबा करता है। बरग शरीना तुखम 1 पाव, हरमल 1 पाव, खाक चुरस्ता कदरे 7 चुटकियां, हल्दी पाव, इन सब इशा को आपस में मिलाकर खरल में खूब बारीक पाउडर बनाया जाए और मरीजा काला कपड़ा सिर्फ अपने बदन पर लपेटे और कोई कपड़ा बदन पर ना हो। इनको वक्फे वक्फे से कोले को सुर्ख करके इस पर रखकर इसकी दूनी पूरे जिस्म को दें और 7 दिनों तक रोजाना देसी अंडे को अपने पूरे जिस्म पर मलकर मगरब के रुख दरिया या नहर के किनारे दफन कर दिया करें। बाद 7 रोज के इस नक्श को गले में पहने, सारे अमल के बाद पहने हुए कपड़े को किसी को दे दे। तो नक्श ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना। इसके बाद बुर्ज है असद। 10 किलो बड़ा गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाए और बुजुर्ग के मजार पर जाकर देखा जाए कि कितने चिराग बुझे हुए हैं। इन सब में सरसों का तेल डाल कर जलाए और घर आकर एक काला कपड़ा ओढ़कर मोर के एक पर हल्दी, हरमल, औत का पाउडर डालकर कोले पर रखकर इसकी दूनी तमाम जिस्म को दे। जब दूनी वाला अमल खत्म हो तो इस काले कपड़े को तय लगाकर कब्रिस्तान में दफन किया जाए। अल्लाह के हुक्म से औलाद ना होने वाले असबाब की रोकथाम होगी, जो भी रुकावटें होगी इन सब का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। नक्श ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है और इसको अपने गले में पहन लेना है। तो आगे जो बुर्ज में जिस बुर्ज का आपको बता रहा हूँ ये है सुमला। 5 किलो बड़ा गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाए और किसी बुजुर्ग के मजार पर सिर्फ 5 चिरागों को रोशन किया जाए। अगर घर से कोई चिड़ा पकड़ा जाए तो बेहतर है, वरना एक अदद चिड़े को लाकर इसको ज़िबा किया जाए और इसे अपने बदन से 7 मरतबा वार कर एक टांग को किसी वीरान जगह मशरक की तरफ दफन करे, दूसरी को मगरब की तरफ, सर को शमाल और बकाया दाढ़ को जनूब की तरफ दफन करे और घर आकर ताज़ा वजू करे और इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बनाए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको अपने गले में पहन ले, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमा देंगे। तो आगे जो नक्श है वो है बुर्ज अकरब। 3 किलो बड़ा गोश्त, 3 किलो आटा, 3 किलो नमक, इन सब को किसी गरीब को सदका दिया जाए। मजार पर तमाम बुझे हुए चिरागों को रोशन किया जाए और मशक, कफूर, तुखम, हरमल, इन सब को सौंफ की तरह बनाकर इसकी दूनी पूरे जिस्म को दी जाए। फिर बरग, अनार, आम और मशक को सुर्ख रेशमी कपड़े में रखकर अपने पूरे जिस्म पर मल कर इस मिट्टी के प्याले में रखें और कहीं दूर जाकर जमीन में दफन करें और घर आकर गुस्ल किया जाए और इस नक्श को ज़ाफ़रान से बनाकर गले में बांधा जाए और एक को चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान से लिखकर गुलाब के रंग से धोकर पिया जाए। अल्लाह के हुक्म से औलाद ना होने वाले असबाब की रोकथाम होगी और बच्चा जरूर पैदा होगा इंशाअल्लाह। नक्श ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बना लेना है। तो आगे जो बुर्ज है वो है कौस। इसका जो सदकात है वो है 5 किलो बड़ा गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाए और खुद, औद, संदल, कफूर, बरग, नीम, नजासत, मुर्ग, खाक, चुरस्ता, इन सब का आपस में इसको आपने मिक्स कर लेना है और पाउडर बना लेना है। मरीजा के जिस्म को धुनी दी जाए और इस नक्श को ज़ाफ़रान से लिखकर अपने गले में बांधा जाए और 21 दिनों तक एक नक्श को चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान से लिखकर शहद से धोकर पिलाया जाए। अल्लाह की रहमत होगी इंशाअल्लाह। नक्श ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है और जो तरीका बताया गया उसी पर आपने अमल करना है। उसके आगे जो बुर्ज है वो है दल्लू। 4 किलो बड़ा गोश्त, 10 किलो आटा, 5 किलो चीनी, इन सब को गरीबों में सदका दिया जाए और आंडे का छलका, सनोबर की छाल, गुलाब के फूलों की सूखी हुई पत्तियां, गूगल, इन सब चीजों को आपस में मिलाकर खरल की मदद से बारीक पाउडर की शक्ल में बनाकर काला रेशमी कपड़ा ओढ़कर अपने पूरे जिस्म को धुनी दी जाए। इस अमल को 7 दिनों तक करना होगा। बाद 7 रोज के इस कपड़े को चौराहे पर रखकर घर आकर ताज़ा गुस्ल किया जाए और इस नक्श को गले में पहना जाए और रोजाना चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान से लिखकर गुलाब के अर्क से धोकर पिया जाए। पीने की मुद्दत 21 दिन है। तो आपने बिल्कुल इस नक्श को इसी तरह बनाना है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो बुर्ज है वो है हौद। 1 किलो दूध, 1 किलो दही, 1 किलो चीनी, 1 किलो
किलो नमक, 5 गज सफेद रेशमी कपड़ा, इन सब चीजों को किसी गरीब को सदका दिया जाए। और 1 अदद चिड़े को अपने पूरे जिस्म के साथ मल कर इसको ज़िबा किया जाए और इसकी दोनों टांगों को दहकते हुए कोले पर रखकर इसकी धुनी ली जाए। सर को अपने घर के सेहन में दफन किया जाए और बाकी जिस्म के हिस्से को चलते दरिया या नहर के किनारे दफन करके इसके ऊपर गुस्ल करे और खुद इस नक्श को ज़ाफ़रान से लिख कर एक को अपने गले में बांधे और सुबह नहार मुंह इस नक्श को चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान से लेकर मिस्री के शरबत से धोकर पिए। इंशाअल्लाह बांझपन का खात्मा होगा और जो भी औरत इस तरह के मर्ज में मुब्तला होगी वो बच्चा पैदा करने के काबिल होगी। तो नक्श ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है। ये रूहानी इलाज है। जो ख़वातीन इन अमाल और सदका जात को बिल्कुल ठीक तरह से आजमाना चाहती हैं वो ये बात जरूर याद रखें कि इन सब अमाल सदका जात का ताल्लुक रूहानियत से है। जैसा आजकल डॉक्टर हजरात चेकअप करते हैं और काफ़ी हद तक गाइड कर देते हैं, इस तरह ख़वातीन सबसे पहले अपना और अपने शोहर का अच्छी तरह टेस्ट करवाएं और देखें कि कहीं डॉक्टरी या हकीमी मर्ज ना हो जिससे बच्चा पैदा ना होता हो, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ मर्द या औरत या दोनों के बच्चा पैदा करने वाले जरासीम ही मर जाते हैं जिससे हमल नहीं ठहरता। अगर कोई ऐसी वजह हुई तो हो सकता है कि यहाँ जो मैंने आपको माल बताए हैं वो अपना सही असर ना दिखाएं। अगर डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त हो और कोई वजह सामने ना आ रही हो तो इन अमाल में से जैसे जैसे तरीकाकार मैंने आपको बताए हैं करें। अल्लाह के हुक्म से रूहानी मुआमलात में मुकम्मल रहनुमाई और मकसद में ज़रूर कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमियनास।